In the last class, we have discussed set, relation, functions, and partitions. And today we will continue from from there. And today's lecture is all about last class we have discussed up to this problem 3.10, page number 73. We will continue from here. And now today I will start with the representative and system of representatives. What is a representative and what is called a system of representative? Okay. So yesterday we have discussed already partition. Suppose P is a partition whose subsets are AI, A1, A2, A3, An. Okay. Be a partition of a set. Any element B from AI. किसी भी एक इसके जो subsets हैं, okay, जो किसी भी जो subsets हैं, जो partitions के अलग-अलग subsets हैं, from that subset, if we take an element B from AI is called a representative of the cell AI of that cell. किसी भी cell से if we take an element from a cell, then we will call this element is a representative of that cell. Okay. Now what is system of representative? Okay. So system of representative is suppose B is a subset of S, then B is called system of representative if B contains exactly one element from each of these cells of P या each of these cells AI, जो भी आप कहें P कहें या AI कहें. तो since we have P is a partition and it has some subsets, so if B is the set whose each member is from each cell, suppose in the example this one, last example you see partition 3, this 3 question number 3 third part, it was a partition, and now we from this S is a set from 1 2 3 up to 9. So we take a subset, here it is a example B, we take a subset 1 2 7 of 3 elements. Okay, our set contains 9 elements. We are taking a subset of just 3 elements. Number is 1, 2, 7. Suppose this is our subset. Now you see 1 from this subset, 2 from this one, 2 from this one, and 7 from this one. This means B के जो members है तीनों, वो तीनों अलग-अलग subset से हैं. 1 from this subset, 2 from this subset, and 7 from this one. So this so therefore this subset is called a system of representative of partition P3. जो partition P3 example में third part जो है उस example के लिए ये set B जो है it is a representative. Now come to equivalence relation. The important topic is, this is a very important topic, equivalence relation. Already it is known to you. I think we will here recall again. Let S be any non-empty set. A relation R on S is an equivalence relation on S if the relation R is reflexive, symmetric, and transitive. That is, the relation R is an equivalence relation on S if it contains, if it holds, number one, for each A in S, सबसेट के अंदर जो कोई भी एलिमेंट आप लेंगे वो अपने आप रिलेटेड होना चाहिए, itself A related to A. Number two, if A is related to B, then B must be related to A. See third part, if A related to B and B related to C, then we need to show that A related to C. A must be related to C. If these three conditions hold, then it is called an equivalence relation. That is reflexive, symmetric. This is symmetricity, and this third one is transitive property basically. Okay.
Now remark, the idea behind an equivalence relation is that it is a classification of subjects which are in some way alike, means of the same category. We are collecting elements of same category. Equivalence relation ये जो क्लासिफिकेशन करता है इसी तरह की ऑब्जेक्ट्स की जो एक ही कैटेगरी के हो, एक ही तरह की हो, alike elements की. Now equivalence relation and partition. What are the relation between equivalence relation and partition? Okay, so suppose R is an equivalence relation on a set S, then for each A belongs to A, let A under bracket capital A, here you see this is denote the set of all elements of S to which S is related under R. R से related है, so that is in a set form we can write it here. This is A under bracket A is and the collection of all those elements of S के उन members जो related to A हो. A X belongs to R means उस relation में हो. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं X such that A related to X. X such that X is related to A. A में related होना चाहिए, ठीक है. A के related जितने elements है उन सबको हम इसमें collection में लेंगे. उसको कहते हैं this, इससे denote करते हैं bracket A से. वो पढ़े हैं तुम लोगों ने ऑलरेडी, उसमें हमने पढ़ाया लीनियर अलजेब्रा में, इसको क्लास कहते हैं, ठीक है. वहाँ जब हमने ग्रुप पढ़ाया Z5 Z6 इस तरह की पढ़ाया, तो वहाँ जो मेंबर्स है 2 बार 3 बार, इसको ऐसे भी लिखते हैं A बार. ये क्लास है बेसिकली, इसी को कहते हैं क्लास. सो वी कॉल दिस ब्रैकेट, दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A. इसको कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A इन S अंडर R, ठीक है, क्योंकि ये रिलेटेड टू R है. द कलेक्शन ऑफ ऑल सच इक्विवेलेंस रिलेशंस, इक्विवेलेंस क्लासेस इज डिनोटेड बाय S by R. It is denoted by S by R. That is, S by R is the collection of such members of classes where A from S. This, yes, उन सारे collections of classes को हम S by R कहते हैं. This is called quotient set of S by R. Now come to the theorem. The main theorem of this unit basically कह सकते हैं, और first half of this unit. This theorem is main theorem, fundamental theorem of equivalence relation. Every equivalence, what is the statement of this fundamental theorem of equivalence relation? Every equivalence relation on a set yields a partition. इसी सेट के ऊपर कोई equivalence relation हो तो वो partition बनाता है, ठीक है. ये मतलब वही जो क्लासेस बनता है equivalence relation से, जो क्लासेस आते हैं, और वो जो क्लासेस होते हैं वो म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं. वो तुम लोगों को मालूम होगा, जैसे 2 बार लिखते थे, 3 बार लिखते थे, जब Z5 लिखते थे सपोज, वो 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अप टू 4 बार तक होता है Z5 के मेंबर. तो वो जो है 2 बार 3 बार ये सब क्लासेस हैं और वो सब म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं. 2 बार के मेंबर जो है वो कोई भी मेंबर आपको 3 बार में नहीं मिला. 3 बार का जो मेंबर थे वो अपना अलग है. 2 बार के मेंबर्स जो है वो 2 के मल्टीपल्स हैं. 3 बार के मेंबर जो है वो 3 के मल्टीपल्स हैं. तो इसी तरह का ये है. A बार के मेंबर जो है वो A से रिलेटेड मेंबर से, B बार मान लीजिए दूसरा हमारे पास B बार है कोई क्लास, तो B बार के मेंबर जो है वो B से रिलेटेड मेंबर्स होंगे. तो ये सब म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं, ठीक है. इसका मतलब यही है कि एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट एंड यील्ड्स या फॉर्म्स ए पार्टीशन. ओके, अब नाउ कम टू इसका प्रूफ जो है ये दिए हुए. लेट R बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट. हम इक्विवेलेंस रिलेशन लेके चल रहे हैं, ठीक है. सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, सो of course it will be since reflexive symmetric transitive, तो हम यहाँ reflexive यूज करेंगे. since reflexive है तो A related to A. for all A in S, A belongs to R means A is related to A. here you see A belongs to R. इसका मतलब ये है कि A is related to A. जैसे वहां लिखा था हम डेफिनेशन में A, X belongs to R. इसका मतलब X is related to A. तो यहाँ दोनों ही A है. इसका मतलब A is related to A or A कह सकते हैं आप बेसिकली. ओके, सो A is in class है because A related to A, कोई भी एलिमेंट उसी रिलेशन उसके साथ रिलेटेड है वो उसके क्लास में होगा. बाय डेफिनेशन जस्ट बिफोर वी डिस्कस यार, यू सी
इससे रिलेटेड है, ए से रिलेटेड है, तो क्लास ए में वो एलिमेंट वी विल पिक अप. ओके, x इज रिलेटेड टू ए, सो देन x इज ए मेंबर ऑफ क्लास ए. इसी तरह का ए रिलेटेड, तो ए को ए क्लास ए में ही लेंगे, वो हमेशा ए जो है वो क्लास ए के मेंबर होंगे, याद रखिए. ओके, इटसेल्फ जो है क्योंकि रिफ्लेक्सिव है तो वो उसके मेंबर है. देयरफॉर ए बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ, वो है, बाकी क्लास में ना भी हो तब भी यूनियन में तो हो जाएगा. अब दो सेट की लेते हैं, किसी एक में मेंबर हो तो दूसरे में ना हो, तो वो एलिमेंट उन दोनों के यूनियन में हम कह सकते हैं. ओके, इंटरसेक्शन में अलग बात है, इंटरसेक्शन में दोनों में होना चाहिए, बट यूनियन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसमें नहीं है, बी बार में नहीं है, सी बार में नहीं है, मतलब ब्रैकेट बी में नहीं है, ब्रैकेट सी में नहीं है, लेकिन ए यूनियन, बी यूनियन, सी यूनियन में हम कह सकते हैं इसको. यूनियन में कहने में दिक्कत नहीं है, ये वेल नाउन फैक्ट है, यूनियन के प्रॉपर्टी है, आप लोगों को मालूम होगा. सो नाउ इट इज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, मतलब ए इज आर्बिटरी है, मेंबर ऑफ एस, और यूनियन ऑफ ऑल क्लासेस के यूनियन जो है वो हमारा इसका मतलब एस जो है कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ क्लासेस ऑफ ए. ठीक है, क्योंकि आर्बिटरी मेंबर, हर कोई भी आर्बिटरी मेंबर हम ले रहे हैं वो अल्टीमेटली यूनियन ऑफ इसमें जा रहा है. इसका मतलब पूरा एस यूनियन में जा रहा है. ठीक है, आर्बिटरी मेंबर का यही होता है. जब तुम लोग प्रूव करते हो ए इज कंटेन्ड इन बी, तो ए के कोई भी एक आर्बिटरी मेंबर जब लेते हैं और वी शो दैट दिस ए एलिमेंट बिलोंग्स टू दैट सेट, आर्बिटरी मेंबर बिलोंग्स टू दैट मींस पूरा सेट जो है वो उसी में कंटेन्ड है. ओके, सो एस कंटेन्ड इन दिस यूनियन. नाउ रिवर्स हमें उसको प्रूफ करना है. एक तो ये हो गया एस कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ ए. नाउ हमें प्रूफ करना है यूनियन ऑफ क्लास ए कंटेन्ड इन एस. कैसे? बट क्लास ए इज अ सबसेट ऑफ एस, ऑफ कोर्स. क्लास ए इसका एक पार्टीशन है. ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसका कलेक्शन रिलेटेड मेंबर से, ए के रिलेटेड मेंबर से, तो वो एस से ही लेंगे, एस के सबसेट बनेगा वो. ओके, एस के सबसेट होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एस, देन इसके यूनियन ऑफ जो है क्लास ए कंटेन्ड इन एस, ये एक सबसेट हो गया. इसी तरह का यूनियन का मतलब क्या है? बहुत सारे सबसेट्स के हम यूनियन ले रहे हैं. किसी भी सेट के जितना भी 10 सबसेट का ले, 15 सबसेट, जितना भी सबसेट्स के यूनियन ले ले, वो उसी के ही सबसेट होंगे अल्टीमेटली. वो उस सेट से बड़ा नहीं होगा. ठीक है, जो कोई एक सबसेट है, मेन सबसेट, उसके आपने मान लीजिए 5 सबसेट है आपके पास, आपने 5 डिफरेंट सबसेट बनाए, उन 5 सबसेट्स की यूनियन लेंगे, then it will again it will become a subset. Okay, subsets के union is always a subset. ये subset से बड़ा तो नहीं हो जाएगा, तो union of subset contained in S, इसका मतलब दोनों तरफ containment हो गया. You see here S contained in union of A and union of A class A contained in S, so S equal to union of class A. अब ये हमें प्रूव करना है दो चीज, हमें इसको शो करना है पार्टीशन. तो एक तो यूनियन हो गया. ठीक है, अब हमें दूसरा चीज शो करना है कि ये जो हमारे पास ये सब क्लासेस हैं, वो इक्विवेलेंस क्लासेस, वो क्लासेस क्या म्यूचुअली डिस्जॉइंट है, ये भी शो करना है. क्योंकि उसमें दोनों चीज शो करना है, म्यूचुअली डिस्जॉइंट भी शो करना है और यूनियन सेट के बराबर वो भी शो करना है. ओके, सो हमने ऐसे दो क्लासेस, इक्विवेलेंस क्लासेस ले लिया, दो डिफरेंट क्लासेस ले लिया. क्लास ए नॉट इक्वल टू क्लास बी. अब हमारा कंडीशन ये है कि बाय डेफिनेशन वो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब दोनों के जो है वो इंटरसेक्शन हमें दिखाना है एम्प्टी. ठीक है, या तो इक्वल होगा, दोनों सब पार्ट्स जो है वो या तो इक्वल होना चाहिए, या इक्वल नहीं है तो बिल्कुल ही अलग है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होना चाहिए. इसका मतलब हमें शो करना है कि इन दोनों क्लास को तो पहले डिफरेंट हम लेके चल रहे हैं. ओके, और डिफरेंट लेके चल रहे हैं. अब हमारा काम ये रह जाएगा, इन डिफरेंट क्लासेस में कोई कॉमन मेंबर नहीं है. दिस टू क्लासेस के इंटरसेक्शन जो है हमें एम्प्टी सेट शो करना है. ये क्लेम है हमारा. इंटरसेक्शन क्लास ए इंटरसेक्शन क्लास बी इक्वल टू 5 शो करना है. इसके अंदर कोई मेंबर नहीं है कॉमन, क्योंकि डिफरेंट दो लेके चले. जैसे वहां डेफिनेशन में ए आई नॉट इक्वल टू ए जे इंप्लाइज ए आई इंटरसेक्शन ए जे इक्वल टू 5, तो वही चीज हम प्रूव कर रहे हैं. ए आई हमारा क्लास है और ए जे हमारा क्लास बी है. अब कंट्राडिक्टरी आप मान लीजिए इसके अंदर कोई एक्स है, आपने एक्स लेके आप चला. ओके, आपको प्रूव करना है कुछ नहीं है, आपने मान लिया कि सपोज किया, वी सपोज दैट एक्स इज ए मेंबर ऑफ दिस, मींस दिस इज नॉन एम्प्टी. वी आर टेकिंग इट, वी आर कंसीडरिंग इट, देयर इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी.
कॉन्ट्राडिक्टरी लेके चल रहे हैं हम, ओके। सो दिस मींस x यूनियन इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब दोनों में है, बोथ x इज इन क्लास A एंड x इज इन क्लास B। दिस मींस x इज इन क्लास A बाय डेफिनेशन, x इज रिलेटेड टू A, x बिलोंग्स टू B मींस x इज रिलेटेड टू B बाय डेफिनेशन। कोई भी किसी क्लास में है तो वो उसी एलिमेंट के रिलेटेड मेंबर्स हैं, ओके। नाउ लेट y बिलोंग्स टू B, B के हम कोई मेंबर ले रहे हैं, B में B y ले रहे हैं, so y is related to B since xb is in R and yb is in R, this implies because हमारा रिलेशन जो है वो x is in B and y is in B, this implies x is related to B and B is related to y, this implies x is related to y। यहाँ हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज कर लिया, ठीक है। ऑल्सो x is related to A and x related to y, this implies A related to y, मतलब x is related to y is related to x, यह इसको हम ऐसे कर सकते हैं दोनों को कंबाइन, x is related to y ये और A is related to x and x is related to y, इसका मतलब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फिर लगाएंगे तो A is related to y, जो दोनों कॉमन है उसको हटा के हम A is related to y, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बाय सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नाउ come to here, this implies y is in, देखिए finally we will get A is related to y, since ay belongs to R, that means by definition of उसमें जाइए क्लास में इक्विवेलेंस क्लास के, इसका मतलब y is in क्लास A, तभी तो A related to y है, ओके। नाउ क्लास B contained in, ये y is in, y arbitrary member of class B के हैं, ओके। we take y as a arbitrary member of class B, here we proved that y is in class A, तो क्या प्रूव हुआ, क्लास A contained in क्लास B contained in क्लास A प्रूव हो गया, ठीक है। दो सबसेट को कैसे एक दूसरे में कंटेंट दिखाते हैं, एक इसका मेंबर लेके आर्बिट्ररी मेंबर लेके कोई शो करते हैं उस सेट में है, इसका मतलब इसका हर मेंबर उसी में जा रहा है, इसका मतलब दिस सेट इज कंटेंट इन दैट सेट, तो ये प्रूव हो गया क्लास B कंटेंट इन क्लास A। इसी तरह का सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट क्लास A कंटेंट इन क्लास B, that means class A equal to class B, दोनों तरफ का containment you have shown that both sided containment, so that means both these sets are equal, ये sets की property है, नया चीज है नहीं ये, this is known to you, so this is therefore class A equal to class B, which is a contradiction। कैसे, देखिए आप शुरू में क्या लेके चले थे, let AB belongs to A such that class A not equal to class B, तो यहाँ जो आप कॉन्ट्राडिक्टरी सपोज करने की वजह से आपको इसी तरह का कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, इसका मतलब आप ऐसे नहीं ले सकते, ये these two classes are different, ठीक है, this which is a contradiction, ये इक्वल हो गया। thus this set P equal to S by R, कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस जो हमने लिया था वो हमारा पार्टीशन बन गया। देखिए कैसे पार्टीशन बना, सबसे पहले हमने क्या प्रूफ किया, ये जो मेंबर्स है इस सेट का P, S over R is our P, nothing but here, okay। तो P हमारे पास कैसे है, क्लास ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस के कलेक्शंस। अब इक्विवेलेंस क्लासेस के कलेक्शन में क्या हुआ, इक्विवेलेंस क्लासेस के जो यूनियन है वो पूरा हमारा सेट दे रहे, वो हमने पहले पार्ट में प्रूफ किया है, ठीक है। और हमने प्रूफ किया है कि ये सारे जो है क्लासेस हैं वो म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं, ठीक है। म्यूचुअली डिसजॉइंट जब नहीं ले रहे तो जाके हमें अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, क्लासेस आर इक्वल। इसका मतलब ये हुआ आइदर क्लासेस आर इक्वल, उस कलेक्शन में क्लासेस आर इक्वल और दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। ये क्लियर है कि इक्वल नहीं है तो म्यूचुअली डिसजॉइंट, और दे आर यूनियन इज आल्सो दैट सेट। सो ये पार्टीशंस की सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, वो अलग अलग सेट्स सबसेट्स हैं और सबके यूनियन जो है वो हमारा होल सेट है, ओरिजिनल सेट। So this is nothing but partition. So therefore this collection of partitions equivalence classes forms a equivalence classes के collection जो है वो partitions के सारे properties satisfy कर रहे हैं। So we will say that it is a partition of S. Now come to discuss converse of this fundamental theorem of equivalence relation। इसमें क्या करें converse में, so let P equal to AI be a partition of a set S, then there exists an equivalence relation R on S such that
the set S by R of all equivalence classes in the same as the partition P A I. Equivalence, then there exist, let P equal to A I be a partition of a set S. यहाँ partition दिया हुआ है आपको, हम कन्वर्स की बात कर रहे हैं. हमारे पास partition हो तो हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है, जैसे पहले है पहला पार्ट, इक्विवेलेंस रिलेशंस इंप्लाइज ए पार्टीशन, मतलब फील्ड से पार्टीशन. ये इसी तरह का यहाँ उल्टा है, इधर लेके चल रहे हैं, हमारे पास हम पार्टीशन लेके चल रहे हैं किसी डेट की, तो उस पार्टीशन के हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, एक इक्विवेलेंस रिलेशंस एग्जिस्ट कर सकता है. ओके, such that S over R of equivalent class is the same as the partition P A I. अब इसके प्रूफ देख लीजिए. Since P equal to A I belongs to Z is a partition of S. For AB in S, we define a relation R on S such that हम एक relation हम define करके चल रहे हैं, such that A R B if and only if A B belongs to A I for some I in I. ओके, किसी एक A1 में है, एक A B, ठीक है, क्योंकि A रिलेटेड टू B है, वो उसी किसी एक उसमें होगा. Now since A belongs to AI for some I in I implies A related to A. This implies R is reflexive. Since A belongs to AI for some I in I, this implies A is related to A. Okay, so this implies R is reflexive. ये हमारा डेफिनेशन ही ऐसे कह रहा है. रिलेटेड मतलब क्या है, वो एक ही उसमें है, सेट में है. ओके, उसे रिफ्लेक्सिव हो गया. अब नाउ कम टू इफ A is related to B. If A is related to means क्या है, there exist I belongs to I such that AB is in AI. Related है तो वो दोनों AI में है. Okay, this implies AB related to AI. This means B comma A, sorry, AB is AI के मेंबर है. ठीक है, तो B comma A, आप इसको चेंज कर लीजिए ऑर्डर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम कैसे एक्स वाई किसी सेट में है तो वाई एक्स भी उसी सेट में है, तो यू कैन से B comma A is in AI. देन बाय डेफिनेशन, ये जो आप डेफिनेशन लेके चल रहे, देखिए ये मेन इंपॉर्टेंट है. वी डिफाइन ए रिलेशन R on S such that A related to B का मतलब क्या है यहाँ, व्हाट डज इट मीन A related to B. इफ एंड ओनली इफ है, ये मिलता है तो आप ये लिख रहे हैं A related to B, और A related to B है तो आप कह रहे हैं कि ये भी किसी AI में है. तो दोनों चीज इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार सिमल्टेनियसली, याद रखिएगा, हर जगह इस्तेमाल हो रहा है. ये देखिए ARB लिखा है, यहां से तुरंत ये लिख दिया ये भी A, B is in AI, B, A is in AI, B, A is in AI. यहां से देखिए B, A AI में है तो एक ARB होगा तो A, B AI में है. यहाँ B, A हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ BR A कर दीजिए, बिल्कुल पैरेलल आप लिख दीजिए. मान लीजिए AR, हम ये कहते हैं ARB इफ एंड ओनली इफ AB is an AI, इसका मतलब ये भी है XRY if and only if X, Y is in AI. ठीक है, C related to D if and only if CD is in AI. CD is in AI हमें मिल जाए तो हम we can write it C related to D. ये चीज है, if and only if है, आप इसको बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं और nothing new here. So B, A AI में है तो by definition here B related to A हो गया. ओके, तो A related to B लेके चले, आप प्रूफ कर दिया आपने B related to A, ये क्या हो गया, R is, आपने सिमेट्रिक प्रूफ कर दी. अब आप लेके चल रहे हैं A related to B and B related to C, तो आपको ट्रांजिटिव प्रूफ करना हो तो आपको अल्टीमेटली एम ये है, आपका क्लेम है A related to C प्रूफ करना है, दोनों मिला के. ओके, सो A related to B, इसका मतलब A, B is in AI. B related to C, इसका मतलब क्या है, B and C किसी AJ में है, कोई भी रिलेशन होगा वो साम AI में जाएगा. ये दूसरा है B related to C, तो B और C जो दोनों मेंबर है वो किसी AJ में होगा, A1, A2, A3, A4 इस तरह की. ठीक है, जो भी दो एलिमेंट रिलेटेड मिलते हैं वो किसी ना किसी एक AI में होगा, या A1 में होगा या दूसरा पेयर जो है वो A2 में होगा, तीसरा पेयर जो है रिलेटेड हो तो वो सम A3 में होगा. ठीक है, तो यहाँ दो पेयर है, देखिए एक तो AB एक पेयर है और दूसरा BC है, BC रिलेटेड. तो AB एक पेयर है, ये AI में हम मान सपोज करें AI में है, तो दूसरा जो है वो सपोज करें AJ में है, और सम IJ इज इन I, मतलब A1, A2 इस तरह की है. सफिक्स में जो इंडेक्स है वो रनिंग 1, 2, 3, ये A1 में है AB, तो BC का सम A2 में है. ये इनका ये कहने का मतलब ये. ओके,
इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, आईजे लिखा हुआ है, ठीक। सो दिस इंप्लाइज क्या है, देखिए दोनों जगह में, ए बी ए आई में है, बी सी एजे में है, इसका मतलब दोनों जगह कॉमन क्या है, बी ए आई में भी है और बी कहाँ है, एजे में भी है। तो बी के बारे में हम क्या कहेंगे, बी बिलोंग्स टू ए आई इंटरसेक्शन एजे, क्योंकि दोनों में है। ए के बारे में नहीं कह सकते हैं क्योंकि ए इसमें है, ए इसमें नहीं है, सी इसमें है, सी इसमें नहीं है, लेकिन बी देखिए, बी दोनों जगह अपियर हो रहा है। सो दैट वाई बी बिलोंग्स टू ए आई इंटरसेक्शन एजे। सिंस पी इज ए पार्टीशन, ठीक है, हम पार्टीशन, हमें पहले से ही पार्टीशन लेके हम चल रहे हैं, ए पार्टीशन, सो दिस इंप्लाइज ए आई इक्वल टू ए जे, ए आई इक्वल टू ए जे, दस ए सी इज इन ए आई implies A related to C. Okay, so this implies A related to C. This implies R is transitive. Accordingly, R is an equivalence relation. Moreover, collection this A equivalence class is the collection X. A R X ये definition है, where X is the same cell AK as A belongs to AK. Thus, the equivalence relation classes under R are the same as the cells in the partition P. So यहाँ अल्टीमेटली हमने ये तीनों हम जो रिलेशन लेके चले, उस रिलेशन को हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ किया। यहाँ भी यही प्रॉपर्टी यूज हुआ है, पार्टीशन वाला, यहाँ प्रॉपर्टी हमने पार्टीशन यूज कर दिया, ठीक है। बी दोनों में है, देखिए क्यों ये दोनों सेम कहाँ है, बी दोनों में जा रहा है इंटरसेक्शन में, इसका मतलब दोनों में है। और हमने कहा कोई भी मेंबर, हम सेट का कोई मेंबर हो, वो क्या होगा, वो किसी एक, एग्जैक्टली किसी एक में जाएगा, या तो दोनों में दो जगह जा रहा है, तो वो दोनों क्या होगा, दोनों सबसेट क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ बी दोनों में हम बिलोंग करा रहे हैं, देखिए बी बिलोंग्स टू बोथ ए आई एंड एजे, इसका मतलब क्या है, फिर पार्टीशन का प्रॉपर्टी हमें यूज करना है, तो वो दोनों इक्वल हम लेके चल रहे हैं, इसका मतलब दोनों इक्वल होगा, और कोई हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई मेंबर एक साथ में ये पार्टीशन के ये सेल में भी नहीं जा सकता है, पार्टीशन के उस सेल में भी नहीं जा सकता है एट ए टाइम, याद रखिएगा, म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब यही होता है। तो इसका मतलब ये दोनों में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों सेल इक्वल है, ओके, दोनों सेल इक्वल है, हम लेके चलेंगे, नहीं तो फिर हमारा पार्टीशन कहां बचेगा बताइए, ये अलग सेल और ये अलग सेल और दोनों में जा रहा है, ये तो पार्टीशन में नहीं हो सकता, ओके। सो पार्टीशन है, दो जगह जा रहा है, यही लाइन है, इसलिए सिंस पी इज ए पार्टीशन, और उससे पहले हमने बी को बिलोंग कराया दोनों में, इसी से हमारा पार्टीशन का कंडीशन यूज कर लिया, भाई दोनों में जा रहा है तो अलग अलग नहीं हो सकता है, अलग दो पीसेस नहीं हो सकता है सबसेट, कि जो सेट का किसी मेंबर दो अलग अलग, इसको सेल भी कहते हैं, जो मैं टुकड़ा कह रहा हूँ, पीस कह रहा हूँ या सबसेट कह रहा हूँ, बेसिकली इसको सेल्स कहते हैं, ओके। तो ये सेल में नहीं जा सकता है, अलग अलग सेल में, एक ही मेंबर, प्रोवाइडेड सेल्स आर इक्वल, दोनों सेल्स इक्वल होगा तब जा सकता है, जाने का मतलब यही हो गया कि एक ही चीज हो गया, अब अलग कहां बचा, ये चीज इस्तेमाल किया, ए इक्वल टू, देखिए उसमें सारे किसी में इफेक्ट नहीं है, सिर्फ इसी लाइन पे थोड़ा सा इफेक्ट, क्यों, पार्टीशन कह के हमने दोनों सेट को इक्वल कर दिया, दोनों सेल इक्वल ले लिया, बिकॉज दोनों सेल में वो कॉमन एलिमेंट जा रहा है, तो दोनों ऐसा नहीं हो सकता पार्टीशन के केस में, पार्टीशन मतलब डिसजॉइंट सेल्स, ओके। तो दिस इज द टाइम लिमिट आ गई, converse of this fundamental theorem of equivalence relation, okay. अब now come to cross partition, कितने मिनट हुए, 50 में शुरू किए ना, 35, चलिए ये क्रॉस पार्टीशन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ये तो लिखना कम हो रहा है, समझा रहे हैं तो इसलिए बहुत जल्दी कवर हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और शुरू के क्लास इतना स्पीड में भी नहीं लेना चाहिए, फिर तुम्हें शुरू के चीजें समझ में नहीं आ रहा है तो कोई फायदा नहीं है आगे जाके, यही चीज बार बार इस्तेमाल करेंगे आगे थ्रू आउट, ओके। सो नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट फ्रॉम क्रॉस पार्टीशन, ओके। सो देखें कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, एक मिनट, कहाँ है, कितने, बहुत कम है, 5 पार्टिसिपेंट है,
कहाँ है बाकी लोग? हाँ भाई, कोई अंकित शर्मा बोलिए। हेलो। यस सर। हाँ, अंकित बोल रहे हैं? अक्षित। अच्छा, हाँ सॉरी यार, तुम्हारा तो ये लग रहा है अक्षित। हाँ, क्या कहते हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? पता नहीं सर, पता टाइमिंग। लॉकडाउन में क्या है, सब तो खाली होने चाहिए क्या? इतना बिजी कौन क्या हो गया कि मतलब क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं? कल तो काफी थे। वो इधर अभी जो पता एडमिट नहीं सर, शाम तक तो आ जाते तो हुए थे सब, कहाँ गए? कहाँ है ये तो मुताहिर अली और जुबैर और ये सब? अभी तो ज्वाइन किए थे। मैं तो एंड में ही जो स्क्रीनशॉट लूंगा, मैं उसी से अटेंडेंस लगाऊंगा भाई। ये नहीं है कि आपने ज्वाइन किया आप चले गए, ठीक है? और 5 मिनट तक मैं एडमिट करूंगा, उसके बाद मैं एडमिट भी नहीं करूंगा। और मैं 30-40 जो भी जिस टाइम जो टॉपिक जहां खत्म हो रहा हो, क्लास एंड करने का टाइम हमें होगा, हम उसी टाइम जो स्क्रीनशॉट लेंगे उसी से अटेंडेंस लगाएंगे। ये याद रखिएगा। आपको अपने ग्रुप में बता दीजिए, विद इन 5 मिनट्स जो भी हम जिस टाइम से क्लास लेंगे, विद इन 5 मिनट्स हम एडमिट कर मैक्सिमम एडमिट करेंगे। और उसके बाद एट दी एंड जो हमारे पास वो बचेंगे, क्या कहते हैं, जो पार्टिसिपेंट, हम उन्हीं की अटेंडेंस, जो हमारे पास यहाँ इस टाइम 4 लोग हैं, हम 4 की हम अटेंडेंस लगाएंगे, हम 5 की नहीं लगाएंगे। हम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। ओके, ये याद रखिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। फ्रॉम टुमारो or maybe next tomorrow, yeah, you don't have class on tomorrow, so uh, from next class I will start cross partition. Okay, ठीक है? Okay. हैं। Thank you, sir. Okay, thank you. थैंक यू सर। I will send you the soft copy of this, of the materials, as well as video recording of this lecture. Okay. Okay, sir. Okay.